चलिए ठीक है, नहीं हो पा रहा। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। ठीक है, तो व्हाट इज ओपैम्प? ओपैम्प इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो एट फर्स्ट व्हाट इज एम्पलीफायर? एम्पलीफायर मींस एम्पलीफाई कर देना। एम्पलीफाई करना मींस if we are having a voltage of 1 volt, then it should be amplified. So what does the amplification means? In general terms अगर आप कहिए तो एम्पलीफायर आप कहाँ यूज करते हो? आप एम्पलीफायर यूज करते हो साउंड सिस्टम में। आप जब यूज करते हो तो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर लगाते हो। क्यों एम्पलीफायर लगाते हो भाई? एम्पलीफायर इसलिए लगाते हैं अगर है कि जो वॉइस जो बहुत कम आ रही थी वो वॉइस और ज्यादा आने लगे। मींस क्या चेंज हो जाए? चेंज हो जाए उस वॉइस की इंटेंसिटी, उस वॉइस का एम्पलीट्यूड। मींस एम्पलीफायर मींस इट विल डील मेनली विद द एम्पलीट्यूड। मींस 1 वोल्ट का अगर कोई सिग्नल है, देन if we are amplifying it, then it is will be converted into 10 volt suppose। तो यहाँ पर 1 वोल्ट का सिग्नल 10 वोल्ट में कन्वर्ट हुआ। तो कैसे कन्वर्ट हुआ? it has been converted through gain। means output divided by input will be defined as gain of the amplifier। so gain क्या है? gain means output divided by input। so if we are giving input voltage of 1 volt and getting at the output 10 volts, it will mean that we are having gain of 10। so that particular case amplifier is having gain of 10। okay, suppose we are having a signal of 1 millivolt, okay, and it is being converted into 10 volt। so what is the gain of the amplifier? The gain of the amplifier is how much? It will be 10,000, okay, or 1,000। how much will be the gain? Am I audible to everyone? Yes, audible? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in that case gain of the amplifier will become 10,000। okay, so what does the amplification mean? Amplification means increasing the amplitude by multiplying some gain value। what is the OP stands for? OP stands for operation। so why this IC is named as operational amplifier? what kind of the operations? this IC is capable of doing different kind of operations, mathematical operations such as what kind of the mathematical operations it can perform? It can do addition, it can do subtraction, it can do multiplication, we can do division by it, we can do integration, we can do differentiation, and different mathematical operations we can perform by help of using this IC। that's why this IC is named as operational amplifier। okay, so I hope now from where the name came, now this thing is very clear to you। okay, now hopefully you are seeing the second slide। all of you are seeing the second slide now? Yes, sir. okay, Yes, sir. so you can see the IC is there. Here you can see the IC. how many pins it is having? 8 number of pins it is having. It is having a bubble here. The bubble is representing pin number 1 from wherever in the IC the bubble is present. That will be representing pin number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। okay? तो कितना अच्छा है ना ये ओपैम्प अगर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, ये एम्पलीफायर की तरह से काम करेगा और एम्पलीफायर की तरह से काम करेगा तो हम क्या करेंगे कि कोई भी सिग्नल पाएंगे और उसको एम्पलीफाई कर देंगे। ओके, तो क्यों ना ऐसा करें कि मान लीजिए घर पे हम क्या करें 10 वोल्ट का सिग्नल यूज करें और उसको हम क्या करें कि
एम्पलीफायर के थ्रू पास करें और 100 वोल्ट अपना जनरेट कर लें या 220 वोल्ट जनरेट कर लें, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही कम लगेगी। तो इज इट पॉसिबल? बात समझ में आई कि क्या हम इस ओप एम्प आईसी का यूज करके घरों में, अगर एम्पलीफायर की तरह से काम कर रहा है तो क्यों ना हम इसको घरों में यूज करके वोल्टेज को एम्पलीफाई करके हम हाई वोल्टेज जनरेट करें? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज एम्पलीफिकेशन कहीं पर भी होता है तो वो उसके बायस सर्किटरी पे बेस होता है। बायस सर्किटरी मतलब कोई भी सर्किटरी जो एम्पलीफिकेशन का काम करती है उसके पीछे एक बायसिंग सर्किटरी होती है, चाहे आप बीजेटी पढ़े होगे या मॉसफेट पढ़े होगे या कुछ भी पढ़े होगे, तो उसमें एक बायसिंग सर्किटरी रही होगी। उस बायसिंग सर्किटरी में क्या होता है? वीसीसी होता है, वीडीडी होता है, वीएसएस होता है, मीन सप्लाई वोल्टेज और रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क होता है जिसके जरिए आप उस सर्किट को, पर्टिकुलर डिवाइस को बायस करते हो। तो यहां पर क्या है, ओप एम्प के साथ भी ऐसे ही होता है। ओप एम्प के साथ ओप एम्प अपने आप तो काम करता नहीं है, ओप एम्प को काम कराने के लिए सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है। हियर आर एट पिन नंबर 7 and pin number 4 we give the power, and what kind of the power it is? It is supply voltage. And what is the supply voltage we normally give? It is plus 9 volt, minus 9 volt, or plus 12 volt, minus 12 volt, or plus 5 volt, minus 5 volt. Okay, these are the supply voltages. Okay, ये सप्लाई वोल्टेज के जरिए आपका ओप एम्प बायस होगा और बायस होने के बाद वो एम्पलीफिकेशन करेगा। ठीक, दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक होता है पिन नंबर 2 इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल एंड पिन नंबर 3 इज नॉन इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ठीक, एक पिन नंबर 6 पे आउटपुट आता है। पिन नंबर 1 एंड 5 ऑफसेट नल होते हैं। पिन नंबर 8 ओपन है, नॉट कनेक्टेड है। तो ये ऑफसेट नल क्या होता है भाई? चलिए, इनपुट टर्मिनल मींस which kind of the IC it is? It is dual input single output IC. Dual input means that we are having two input, one is non-inverting input, another is inverting input, and next one is output, is single output. Okay, the offset null, why we have to use this offset null? Anyone is having any idea about offset null? Offset null, offset null means क्या होता है? Anyone want to speak up? आउटपुट को जीरो करना, 0 वोल्ट। ऑफसेट नल मीन्स होता है सर आउटपुट। हाँ ठीक है ठीक है। ऑफसेट नल मीन्स होता है कि आप गए किसी भी दुकान पर, ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी शॉप पर गए और आप कोई सामान उसके यहाँ से परचेज करना चाहते हैं। ठीक, तो अगर उसके जो भी डिस्प्ले वाला तराजू होता है हर जगह, तो अगर उस पर आप देखोगे और अगर उस पर 100 ग्राम शो कर रहा है और उसने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो आप पहले क्या कहोगे उसे? आप कहोगे भैया पहले इसे 0 पे सेट करो। ठीक, तो दैट इज ऑल्सो विद द आईसी। आईसी में भी क्या है कि जब हमने कोई भी इनपुट नहीं लगा रखा है, we haven't given any input at inverting terminal and non-inverting terminal, but still the IC is showing some output, तब भी IC जो है कोई आउटपुट शो कर रही है। ठीक, तो उसको कैसे सेट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दो और इनपुट टर्मिनल होते हैं, these are offset null terminals। इसकी मदद से हम प्लस वोल्टेज या माइनस वोल्टेज लगा करके जब कोई भी इनपुट ना दिया गया हो और आउटपुट पे कुछ वोल्टेज आ रहा हो, तो उसको आउटपुट के वोल्टेज को नलिफाई करने के लिए हम ऑफसेट नल पिन का यूज करते हैं। ओके, आई होप नाउ इज वेरी क्लियर टू ऑल। Anyone is having any query, then you can ask. तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई क्वेरी है? सर, हाउ कैन वी गेट माइनस वोल्ट सप्लाई? माइनस हाउ वोल्टेज कैन वी गेट माइनस वोल्ट सप्लाई? ओके, यस यस। देखिए,
नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई का क्या होता है कि हमेशा वोल्टेज सप्लाई रेफरेंस पे होती है। रेफरेंस मींस हम जीरो के रिस्पेक्ट में, ठीक, जीरो के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई भी वोल्टेज सप्लाई देख रहे हैं, सपोज करिए एक जगह +5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, और एक जगह 0 वोल्ट आ रहा है, तो आप जब वोल्टमीटर लगाते हो, आप लैब में गए होगे, वोल्टमीटर लगाया, ठीक, वोल्टमीटर लगाया, तो अगर आपने 0 वाले पे नेगेटिव पोर्शन रखा और प्लस वाले पे आपने पॉजिटिव, +5 वाले पे अगर आपने पॉजिटिव पोर्शन रखा, तो वोल्टमीटर आपका शो करेगा क्या, +5 वोल्ट। ओके, लेकिन अगर आपने एक्सचेंज कर दिया मतलब वोल्टमीटर क्या शो करता है, वोल्टमीटर शो करता है वोल्टेज डिफरेंस। ओके, तो अब आपने चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, आपने चेंज कर दिया इस तरीके से कि आपने जो माइनस वाला टर्मिनल था, ठीक है, उसको +5 पे ले गए और प्लस वाले टर्मिनल को कहां ले गए, 0 वाले पे ले गए। तो उस केस में माइनस वाले टर्मिनल को वो रेफरेंस के तौर पे देखेगा और जो 0 वाला टर्मिनल है उसको वो कैसे देखेगा, उसको वो कैलकुलेशन के टर्म्स में देखेगा, तो जो वोल्टमीटर पे रीडिंग आएगी वो -5 वोल्ट आएगी। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि हम जब भी जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो 0 वोल्ट के डिफरेंस में जब आप पॉजिटिव पर लेकर के चलते हो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव सप्लाई शो करता है, और वही नेगेटिव पर लेकर अगर आप चेंज कर दोगे, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, पॉजिटिव वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप पॉजिटिव वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो, तो पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई शो करेगा, और उस पॉजिटिव वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर आप ग्राउंड पे टर्मिनल लगाकर चेक कर रहे हो तो वो नेगेटिव वोल्टेज को शो करेगा, ठीक। लैब में आपके पास जो पावर सप्लाई आपको मिलती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज इसी तरीके से मिलता है, ठीक। होपफुली हम लोग इस सेमेस्टर में मिलेंगे, लैब में भी जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो वहां पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से जब आप 0 वोल्ट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव सप्लाई को देखते हो तो पॉजिटिव शो करता है, और जब आप किसी हायर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 0 वाले को देखते हो तो नेगेटिव शो करता है, ठीक। और कोई क्वेरी, एनी अदर क्वेरी, क्लियर है? एनी अदर क्वेरी, आई बात समझ में? किसका एक क्वेरी था? शहबाज अहमद, आप आई बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। तो मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाईज के जरिए ये इनपुट वोल्टेज लेके आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक। तो वी आउटपुट क्या होता है, व्हाट इज वी आउटपुट, वी आउटपुट इज k into v plus minus v minus। what is this v plus minus v minus? जो इनपुट वोल्टेज होता है that will be called positive, v plus will be called non inverting input voltage, v minus will be called inverting input voltage, और v plus को अगर आप v minus से सब्सट्रैक्ट कर देते हो तो दिस विल बी कॉल्ड डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, और ये डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज k से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे जाता है, मींस v आउटपुट विल बी k into v plus minus v minus, means the output is equals to gain into differential input voltage. And how we can define differential input voltage? It is equal to non-inverting input voltage minus inverting input voltage. Okay, suppose let me take an example. Suppose we are having here 3 volt, at V plus we are having 3 volt, at V minus we are having 2 volt. So 3 minus 2, and we are having gain of 10. So 3 minus 2, 3 minus 2 means it will become 1, and 1 will be multiplied with 10. So output will be 10 volt. Okay, clear? Suppose we are having here 2 volt, at V plus we are having 2 volt, at V minus we are having 3 volt, at V plus we are having 2 volt, at V minus we are having 3 volt. So V plus minus V minus will become minus 1 volt, and this minus 1 will be multiplied with 10 and will result minus 10 volt at the output. Okay,
Now next one is op-amp transfer curve. So we are having VID, V input is VID. VID means V plus minus V minus, and V output is on this axis. What will be K? K will represent, if you are saying this is V input, this is V output, so Y is equals to mx. What will be m? M will be slope, equation of line. Y is equals to mx. M will be slope, so slope will be represented by gain. So Y equals to mx is equation of line passing through origin, straight line. So this will be, and K will be given by slope. Okay. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते जाएं और आउटपुट वोल्टेज लगातार बढ़ता जाएगा, गेन कुछ भी रहे। ठीक, एक ऐसा समय आएगा जब आपका क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा, और वो सैचुरेशन पॉइंट क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज। ठीक, किसी भी केस में आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता है। सपोज करिए मैंने V प्लस की वैल्यू ले ली 5 वोल्ट, V माइनस की वैल्यू ले ली 1 वोल्ट, और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आउटपुट पे 40 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन क्या आउटपुट पे 40 वोल्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने जो सप्लाई वोल्टेज लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है? 10 वोल्ट, प्लस 10 और माइनस 10 लिया हुआ है, तो आउटपुट कितना आएगा? केवल प्लस 10 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं और आप लोग चैट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि VSS प्लस माइनस, मतलब सप्लाई वोल्टेज जो है दैट इज प्लस माइनस 10 वोल्ट। ओके, V प्लस की वैल्यू 3 वोल्ट है, V माइनस की वैल्यू 5 वोल्ट है। ठीक, V प्लस की वैल्यू 3 वोल्ट है, V माइनस की वैल्यू 5 वोल्ट है, गेन अगर 10 है तो आउटपुट जरा बताइए कितना होगा? What will be output? I hope everyone have got the question. You can reply in chat box. So answer will be minus 10 volt. Why answer will be minus 10 volt? Sir, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 3 minus 5 will be minus 2. minus 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो minus 20 वोल्ट आया। तो क्या आंसर minus 20 वोल्ट होगा? नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ओपैम्प के केस में किसी भी कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता है। और यहां पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना मैंने दिया हुआ है? प्लस माइनस 10 वोल्ट। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज किसी भी कंडीशन में अगर निगेटिव साइड को क्रॉस करेगा तो हम माइनस VSS लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव साइड को क्रॉस करेगा तो हम प्लस VSS लिखेंगे। मतलब यहां पर हो जाएगा माइनस 10। ओके, क्लियर? ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। ओके, तो हम लोग जो यहाँ पर स्टडी करेंगे उसमें मैक्सिमम कंडीशंस में ओपैम्प को आइडियल मान के चलेंगे। ठीक, तो आइडियल ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? नंबर 1, आइडियल मींस लगभग सब कुछ एक्सट्रीम। जैसे कि वोल्टेज गेन क्या होगा? इनफाइनाइट। ओके, मींस जो मैं अभी यहाँ 10 कह रहा हूं, आइडियल ओपैम्प के केस में वो क्या होगा? इनफाइनाइट। इनपुट इंपेडेंस क्या होगा? इनपुट इंपेडेंस भी इनफाइनाइट होगा। मींस यहां पर प्लस VSS और माइनस VSS के बीच में, सॉरी, प्लस V प्लस और V माइनस के बीच में जो इंपेडेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है? इनफाइनाइट। मतलब यहां पर कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह से।
आउटपुट रेजिस्टेंस इंपेडेंस क्या होता है? जीरो, मींस कोई भी आउटपुट इंपेडेंस नहीं होता है। बैंडविड्थ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बैंडविड्थ मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है, ठीक। और जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब हमें कभी भी ऑफसेट को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बेस्ड अपॉन दिस अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। अगर इनपुट वोल्टेज केवल और केवल पॉजिटिव वोल्टेज वाले सप्लाई पे लग रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे लग रहा है, तो उस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं नॉन इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहां देखिए वोल्टेज कहां लग रहा है? केवल और केवल पॉजिटिव वाले पे लग रहा है, ठीक। दिस काइंड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन विल बी कॉल्ड नॉन इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। नॉन इनवर्टिंग मतलब जैसी वेवफॉर्म इनपुट में आएगी बस वैसी वेवफॉर्म एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे मिल जाएगी, ठीक। कोई भी फेज चेंज नहीं आएगा, कोई भी, जैसे यहाँ पर फर्स्ट साइकिल अगर निगेटिव में है तो यहाँ पर भी निगेटिव में, सेकंड साइकिल पॉजिटिव में, यहाँ भी पॉजिटिव में, ठीक। सेकंड काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट होता है वो केवल और केवल कहां पे लगा होता है? इनवर्टिंग मतलब निगेटिव वाले टर्मिनल पे लगा होता है, ठीक। इस केस में आउटपुट वेवफॉर्म एम्पलीफिकेशन के साथ साथ इन्वर्ट भी हो जाती है। इन्वर्ट हो जाने का मतलब अगर पहला यहाँ पर पॉजिटिव में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक। यहाँ पर निगेटिव है सेकंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ओके। फिर आपको ये भी समझना होगा कि इन्वर्टिंग वाले में जो फेज चेंज होता है वो 180 डिग्री का फेज चेंज आता है। 180 डिग्री का फेज चेंज मींस पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव से निगेटिव अगर कुछ भी हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? 180 डिग्री फेज चेंज, ठीक। 180 डिग्री फेज चेंज मींस अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर होती है तो निगेटिव एक्स एक्सिस इधर होती है, तो वो जो चेंज होता है दैट इज ऑफ 180 डिग्री, ठीक। दूसरे टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक होता है ओपन लूप और दूसरा होता है क्लोज लूप। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है, मींस सॉरी कोई भी फीडबैक नहीं होता है, ठीक। सॉरी, यहाँ पर डायरेक्टली आप इनपुट दोगे और आउटपुट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक। जबकि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट का कुछ पोर्शन फीडबैक होकर के इनपुट वाले पोर्शन पे जाता है, ठीक। दिस काइंड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन विल बी कॉल्ड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। बेस्ड अपॉन सर्किटरी एंड बेस्ड अपॉन इनपुट तीन तरीके के सर्किट होते हैं, एक होते हैं इनवर्टिंग, दूसरा होता है नॉन इनवर्टिंग, और अगर दोनों पर ही इनपुट लग गया है तो वो कहलाता है डिफरेंशियल काइंड ऑफ द एम्पलीफायर, ओके। हम लोग जो ओपैम्प पढ़ेंगे, अगर हम आइडियल ओपैम्प पढ़ेंगे तो आइडियल ओपैम्प में जो कॉन्सेप्ट आता है, दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है जीरो इनपुट करंट का कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए आइडियल ओपैम्प में वी आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी आउटपुट इज इक्वल्स टू होता है वी आई डी ए इंटू या के इंटू वी आई डी, ठीक। तो आइडियल ओपैम्प में गेन की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? आइडियल ओपैम्प में गेन की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, ओके। तो इनफाइनाइट को आप डिफाइन कर सकते हैं क्या? मतलब के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी आई डी, ठीक। वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी आई डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आप इनफाइनाइट को डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं इनफाइनाइट को नहीं डिफाइन कर सकता हूं। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूं कि 1/0 क्या होता है? 1/0 होता है इनफाइनाइट। मींस अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी आई डी इज इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो। मींस हम किसको? वी प्लस माइनस वी माइनस को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? जीरो से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। अगर हम के को नीचे भी यहां पर डिवाइड कर देते हैं, वी आउटपुट डिवाइडेड बाई के, ठीक। तो वी आउटपुट डिवाइडेड बाई के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वी प्लस माइनस वी माइनस बराबर क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ आइडियल ओपैम्प वी प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? वी माइनस, ठीक है। इसी चीज को यहां पर डिफाइन किया गया, ठीक। वी आई डी इज इक्वल टू वी आउटपुट डिवाइडेड बाई ए डी। अगर ए डी की वैल्यू को हमने बहुत हाई कर दिया, देखिए यहाँ पर बहुत हाई कर दिया और इसको भी एक्सट्रीम लिया हुआ है, तो उस केस में भी वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 150 माइक्रोवोल्ट। 150 माइक्रोवोल्ट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, मींस इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 150 माइक्रोवोल्ट। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट लगभग लगभग सेम पोटेंशियल पर हैं। लगभग लगभग सेम पोटेंशियल मतलब कहा जाता है कि यहाँ पर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर
जो वोल्टेज एक टर्मिनल पे आएगा वही वोल्टेज दूसरे टर्मिनल पे आएगा। तो वर्चुअल ग्राउंड में क्या होता है, इन आइडियल ऑप एम्प अगर एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है तो दूसरे इनपुट टर्मिनल पर वो वोल्टेज यहां नहीं जीरो होगा, लेकिन जो जस्ट इनपुट का, जो ऑप एम्प का जस्ट इनपुट टर्मिनल होगा वहां पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी चीज, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प में इनपुट रेजिस्टेंस यहां पर इनफाइनाइट होता है, तो कोई भी करंट चाहे इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल हुआ या नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल हुआ, किसी भी टर्मिनल से करंट इन नहीं करती है, किसी भी टर्मिनल से करंट अंदर नहीं जाती है। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके। तो आपके लिए कुछ होमवर्क कुछ इस तरीके से है कि आप डेटा शीट डाउनलोड करोगे, डेटा शीट डाउनलोड करोगे